भाई देखो, लॉन्ग बोर्डिंग आती नहीं है वैसे, ये तो बस कूल शॉट्स के लिए है। ये कहानी है तीन दोस्तों की जो ज़िंदगी की फिराक में रहते हैं और जब कभी ये रोड पे निकलते हैं तो काफ़ी स्वैग से निकलते हैं। So we have left from Gulmarg and we are heading to Bangush Valley. But अब दो लोगों से हम तीन हो गए हैं। गुलमर्ग राइडर खुद राइड करते हुए, इस बार राइडर नहीं है, इस बार गुलमर्ग ड्राइवर हैं। राइडर से गाड़ी में ड्राइवर बन गए हैं और हमारे साथ बंगुश वैली जा रहे हैं। And the entire road from the past 9 days we haven't bought a packet of chips or a fruity or a coke, any sort of thing, not even peanuts, nothing. I think the morning breakfast every single day is banana and Abhishek has been trying to get all sort of local food so that because taste resembles travel, and the entire point of travel is this, that it stays in your memory, right? And the way it stays in memory is by having your taste buds sensitized with the local things, and that's what matters. So we're trying to do our best by keeping our car free of trash and not throwing anything outside, but only throwing banana peel so that people can slip over here. I think my shockers have leaked, one of the bush have just failed or something like this. I could see like oil दिख रहा है? हाँ भैया बराबर। शॉकर लीक कर रहा है ना? हाँ भाई कंफर्म। हाँ शॉकर लीक है ना? कभी मौसम को आजमाया आपने? हमसे पूछिए। And it started raining so heavily over here. It's just like you can hear thunderstorm roaring over us. But happily we are gonna cross Razdan in just few minutes, and this is an amazing view in front of me, and that's the reason I have come to Gurez over here. We have Mir with us, we have Chiku over here, and this is all about Gurez, man. On top of Razdan Pass, and can you listen to this? This entire valley is pouring with the clouds. They have come on the road. It's raining crazily over here. It's cold. I don't know if I'll be able to reach Gurez or not today. There may be landslide, but this journey, whatever it comes with fun. It comes with this thrill. I mean, look at this entire thing. Woo! And the guys with me, they think I am crazy. Getting out of the rain with my camera is not waterproof. It might get wet, but well, I mean, this is secondary. Content is more important, right? Finally reached Gurez, and the entire road was a series of checkposts. I mean,
and I mean, I never seen something like this before. I've been to all the states and of our country, but over here we went, I think went through at 5 checkposts everywhere, and it was a funny situation because people over here won't just believe that, you know, tourists come over here to see such places. But yeah, finally we're here. Just had some good dinner. I cannot see you because this guest house doesn't have any view, but पहाड़ का नाम क्या था? हवा खातून इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ये एसी खिड़की सब देखेंगे. मॉर्निंग में दिखा देंगे. ये हाँ मॉर्निंग में दिखेगा, अभी तो कोई दिखेगा नहीं. We'll see tomorrow. We'll have some really good amount of content, doing skateboarding, flying the drone around the last remote village of our country across Pakistan. We'll try to see our neighbor maybe or not or whatever. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's like all that glitters is gold. Half the story has never been told. So now you see the light. Stand up for your rights. मेरी आवाज़ सुनो. मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है. तो अम्मी की याद आ रही है. हाँ, अम्मी की याद आ रही है. मेरी माँ. Just crossed another, I mean not another, 4 checkposts, and I think 4 more checkposts left. Since yesterday we have crossed at least 13 checkposts completely, but I think the view which I'm seeing right now in front of me is completely worth it. This is the view that I was waiting for last 9 days before I started this trip over here. I know the audio might not be completely audible, but this view, look at this view over here. Isn't this pretty amazing? I mean, the entire backdrop of river just flowing like anything over here. This is surprisingly amazing. Tandoori chicken, kadhai chicken, butter chicken, chicken murg masala, chicken tandoori. Vegetarian guys. All the houses are completely like, I won't even say rustic, but these are something that I have not seen before, you know. Covered with barbed wire all across. The fields are covered barbed wire, the bridges, the houses, everything is just, this is boundaries, you know. And these fences that we build to protect our country sometimes divides the nation in its own unique way. And anyways, it's political talks, we don't talk about it. We left from the war in morning around 8 and trying to reach Sheikhpura, which is one of the last villages on this side of our country. So we have finally reached our last destination, which is Sheikhpura. As I said to you before, we're not going to Chakwali, the roads are not good, but the final stage of our journey in Gurej starts over here. तो सबसे पहले इस बोट को थोड़ा सीधा करें. से पहले आर्मी नहीं थी. 90 के बाद आर्मी यहाँ आई. हमें कुछ फर्क नहीं पता है. हमें कोई इसमें कोई एतराज़ नहीं है. आर्मी बैठे या ना बैठे, क्योंकि यहाँ शांत मुल्क है. गुरेज तिल जो है शांत मुल्क है. बस यहाँ हमारी चाहत और हमारी डिमांड है यहाँ में टूरिज़म आना चाहिए. जब से 10 साल पहले हमारे को यहाँ रोड नहीं था. हमारी दिक्कत हो रही थी. हम बांडी से या गुरेज से पैदल चल रहे, पैदल घोड़े में लेकर आते हैं. कोई राशन वगैरह घोड़े में लेकर आते थे. आजकल शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज हमारे घर तक गाड़ी पहुंच रही है. जब आप यहाँ इधर आ सका, हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जबकि हमारा अस्पताल नहीं है नज़दीक, कहीं हेल्थ सेंटर नहीं है यहाँ, कोई नज़दीक
हमारा कोई बीमार होता है, हम यूँ ही गाड़ी यहाँ से बुक कर रहा था, वो गाड़ी हमारे को 3000 या 2000 रुपया ले सकती है। अगर हमें टावर यहाँ होता, हमें फ़ोन के कोई यहाँ होता तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी। मगर बस यूँ ही हमारे डिमांड्स ये है कि हमें वहाँ टावर होना चाहिए। बस टावर जब होगा तो हमारा हर कनेक्शन होगा। एजुकेशन की बात करें, हम हेल्थ की बात करें, पानी की बात करें, पानी यूँ ही जब विंटर शुरू होता है क्या बोलता है, बस यूँ ही 3 या 4 महीने मौसम गर्मा का होता है, हमारा पानी देखता है। यूँ ही दिसंबर का महीना शुरू होता है तो हमारा पानी का पूरा क्लोज होता है कि कोरा लग जाता है, जैसे कोरा कहते हैं हम। 15 मिनट मैं दिल्ली में अपने फ़ोन के बिना नहीं रह पाता। दिन में मेरा इंस्टाग्राम का यूज़ 1 घंटा होता है, मेरे फेसबुक का यूज़ आधा घंटा होता है, मेरे व्हाट्सएप का यूज़ 2 घंटा होता है, और इंटरनेट का यूज़, ब्राउजिंग, हर चीज़ लेके ऑलमोस्ट आप लगा लो दिन में 2 घंटा मैं अपने फ़ोन में निकालता हूँ। मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे फ़ोन बात करने की ज़रूरत है, टाइम पास की हिमायत नहीं है। चले चिकू, चलो बाय बाय बोल दो, बाय बाय। चलो चिकू। ये पीछे जो है ये एक स्कूल है, ये घर नहीं है, ये स्कूल है। और हमारे साथ जो बैठे हैं वो स्कूल के प्राइमरी टीचर हैं। इनको बड़ा मुश्किल से मनाया बात करने के लिए, पहले थोड़ा शर्मा रहे थे, फिर मैंने सोचा कि क्या वो बोलूँ, कहाँ से क्या कुछ, और मैंने बोला कि थोड़ा बात कर सकते हैं। इस स्कूल में 11 ही बच्चे हैं और इधर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। यहाँ से देखो बच्चे स्कूल आ रहा है, उनके लिए थोड़ी सी अच्छी मिड डे मील मिल रही है, तो हमारे बच्चे ताकि आगे जाए, आगे जाकर देखे कि दुनिया कहाँ आगे चल रही है, कहाँ पे पढ़ रही है, और आगे यहाँ से IAS ऑफिसर बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं वो भी हमारे बच्चे देखना चाहिए कि हम भी पढ़ेंगे, हम भी बनेंगे। यहाँ से हमारा वो एक्सपोजर बच्चों के लिए नहीं मिल रहा है, तो वो जाएंगे कहाँ से। और बुक्स और ये क्या कहते हैं, कॉपी, पेंसिल वगैरह, ये अगर चाहते हैं कि इनके लिए, ताकि ये आगे पढ़ेंगे और कुछ बनेंगे वो आगे। ये अब्दुल जिल थे, और अगली बार आप यहाँ पे आएँ तो ये प्राइमरी स्कूल जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके एड्रेस का। This is that primary school that we just talked about, and I know it doesn't look like a primary school, but this is the primary school. They have 12 kids over here. 12 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हमने लिए राजमा गुरेज से, और मैं बस वेट नहीं कर सकता कब राजमा खाऊंगा। जिस दिन आपसे मैंने लिए वो पट्टू भी बनाते हैं, वुलन का सामान भी बनाते हैं, पर उन्होंने जब बताया राजमा भी, मैंने कहा लेके जाऊंगा। राजमा मेरे को बनाने नहीं आते, खाने आते हैं। हम बनाने वाले ढूंढेंगे, फिर उनके साथ खाएंगे। ये खाना बदोश भी क्या अजीब चीज़ है, नहीं? कभी कभी खुद को खुद से रूबरू करा देती है। हमारे साथ प्राइमरी मिडिल स्कूल के एक और टीचर हमें मिले हैं, बशीर अहमद जी। हम इनसे 5 मिनट पहले कि हम खाना खाने जा रहे हैं और चीकू भूख से मजा, इनसे 2 मिनट बातें करेंगे और समझेंगे गुरेज को थोड़े और अच्छे नज़रिए से। बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वहाँ मिलते नहीं है, क्योंकि दूर दराज इलाका होने की वजह से यहाँ मतलब विंटर में बर्फ़बारी भी होती है। 6-7 महीने कट रहता है ये, बिल्कुल मैन श्रीनगर से। अच्छा। क्योंकि यहाँ विंटर की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है, तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि यहाँ से डेवलपमेंट हो जाए। ये बैकवर्ड एरिया है, फार फुलंग एरिया है, इसको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट कर रही है इंशाल्लाह हो जाएगा। टूरिस्ट आए तो वहाँ लोगों को रोज़गार मिल सकता है, यहाँ होटल बन सकते हैं ताकि लोग जो है वो अपना रोज़गार कमा सके। गरीब लोग हैं,
अगर वो अपने मकान में एक एक कमरा अगर टूरिस्ट के लिए बनाए, उनकी गरीबी कहीं हद तक तो ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ आना चाहिए। I've given the GoPro to the kids to see what they actually do, and I have asked the teacher to give the GoPro to the most smartest kid in the school, and let's see what he does with the GoPro. Director कोई और बने तो ज़्यादा अच्छा है। गुरेज कश्मीर की एक जन्नत है जो कांटों की लकीरों में सींचा है, और जिन लोगों ने ये लकीरें सींची हैं वो खुद ही इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनके कांटे छूट गए हैं। Such a remote place, but the most warmest place I've ever visited. गुरेज, तू मोहब्बत है यार। That was the end of Gurez trip. We are leaving Gurez with a beautiful note of what we saw in a perfect way, and everything was glamorous actually. I've never seen villages which are such remote and exquisite houses built out of rustic wooden, antique things, and people so friendly. Our next vlog will be from Sonmarg, and with some amazing glacier and everything around. Hey Chiku, वहाँ सुसु मत कर। Anyways, I'll see you guys in Sonmarg. जिंदगी क्या इनकलाबन हंस किताब, इनकलाबो इनकलाब। जिंदगी क्या इनकलाबन हंस किताब, इनकलाबो इनकलाब। ये जिंदगी क्या इनकलाबन हंस किताब, इनकलाबो इनकलाब। ये जिंदगी क्या इनकलाबन हंस किताब, इनकलाबो इनकलाब। इनकलाबों पैदा कर मजहब दी, ठीक है सर। सुख शक हो मुख यकीन। इनकलाबों पैदा कर मजहब दी, को सुख शक हो मुख यकीन। इनकलाबुक असल मानी गुस्ताखी माफ, चुन बाबा काके रहबर साफ साफ। जिंदगी हुन असल मानी इस तरह। अब सनसेट के लिए हम काफ़ी लेट पहुँचे हवा खातून में। सनसेट तो मिस हो गया करने के लिए। कुछ भी है, बहुत कुछ है। बस अब मिलेंगे हम सोनामर्ग में, और जाके वहाँ पे आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत स्केट बोर्डिंग के। तब तक के लिए एंजॉय करो, मजे लो। Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me. कहाँ गए हो बताओ इंडिया में? मैं त्रिपुरा में गया हूँ। त्रिपुरा में अगरतला गया हूँ, हपानिया गया हूँ, मेघालय गया हूँ मैं,
अच्छा। मेघालय में शिलोंग गया हूँ, जुआई गया हूँ, अरुणाचल गया हूँ मैं, आसाम में पूरा घूमा हूँ, कोकराझार गया हूँ।